लर्निंग इंग्लिश थ्रू श्री रामचरितमानस एक अभिनव, अद्भुत और अकल्पनीय संकल्पना है। आज श्री कलाजी महाराज के जन्मदिन पर मेरे लौकिक गुरु डॉक्टर अरविंद कुमार पुरोहित के साथ 1000 एपिसोड की इस श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। आप अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस के साथ साथ अंग्रेजी भाषा सीखने के इस अभियान में सहभागी बनकर धन्य होवें और धन्य करें। जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। Welcome to all the participants who are aspiring to learn English through Ramcharitmanas. At the outset, I may say and thank Pandit Vishnudat Sharma for a very affectionate introduction. We both were aspiring and planning to launch this program of learning English through Ramcharitmanas since long. Today, that day has arrived. Pandit Vishnudat Sharma has just spoken about the relevance of Ramcharitmanas in our today's worldly life, and that we both believe that along with the respect and reverence for our mother tongue, we should also learn at least one foreign language. English being a passport to the world is a very, very important language in which we should learn to communicate. With this program and with this kind of venture which we are undertaking, I would also like to begin with the recitation of that first shloka which was recited by Pandit Vishnudat Sharma, and Maharaj Tulsidas Ji Maharaj started writing Ramcharitmanas with that shloka. It goes like this: वर्णा नामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारो वंदे वाणी विनायको. He has paid his respect to Ma Saraswati and Lord Ganesha, as well as he has defined and has summarized of learning all the languages, of learning literature, poetry, prose, and music, and all kind of fine arts. Let us see how it is possible. Varna namartha sanganam. Varna means letter, nam means word, arth means meaning, Sanganam means sentence. Rasanam means joy and bliss we achieve. Chand means poetry. Sam means music. Samapi means music and all other remaining fine arts. Varna namartha sanganam rasanam chandasamapi. Through all these, we aspire for the welfare of the entire humanity. Mangala Nam Kartaro Vande Vani Vinayako. And we pray and pay our respect to Ma Saraswati and Lord Ganesha, who are the patrons of success and removing all the obstacles in the way of our aspiration. So, dear participants, I would like
that all of you who are listening to this video should remember by heart this first sloka of Sri Ramcharitmanas and chant this sloka at least 3 times a day. What would happen? It would clarify your pronunciation. Your tongue will become flexible and it will open your heart and mind toward learning of the new language. And kindly keep a notebook and a pen with you in all our future discourses so that you can write down some of the important points. And you can also do the homework which I suggest you in the process of learning English language. And to begin with, you all know how many letters A, B, C, D, E, F, G, H. How many letters are there in English language? How many words? If you want to know, you should have some dictionaries. I recommend dictionary of Father Kamil Bulke, Oxford Dictionary, Webster Dictionary. And if you are internet or net savvy person, you should download Google Translate in your Android or in your laptop or in your computer, whatever. It would serve the purpose of English dictionary from Hindi to English as well as from English to Hindi. Now, my first lesson today is on 3 questions. First of all, what is a sentence? What is the definition of a sentence? What is the composition of a sentence? How many types of sentences are there? For example, I am speaking some of the sentences. Number 1, Mahakavi Tulsidas wrote Ramcharitmanas. Ram is the hero of Sri Ramcharitmanas. Why Ravan is not worshipped like Ram? And why not Sugriv fought with Bali? These are the examples I have selected or which you already know, because I believe there is no Indian who do not know about the story of Ramayana. One may have or may not have read the Ramcharitmanas, but we all are aware about the story of Ramayana. So my first teaching goes that what is the definition of a sentence? And the answer is, sentence is a meaningful combination of words. Sentence is a meaningful group of words. वाक्य एक शब्दों के अर्थवान समूह को वाक्य कहते हैं. इसके आगे जो 2 प्रश्न हैं, what are the compositions of sentences and how many types of sentences are there? Well, this is the first lesson of English grammar which I think we should begin with. And today I have taught you one of the most important definitions of English grammar, that what is a sentence? And the answer is meaningful group
of world is a sentence. तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की. तुलसीदास जी created Sri Ramcharitmanas. This is a sentence, and this is a meaningful sentence which gives us a communication, a meaning that Sri Ramcharitmanas was written by तुलसीदास जी. रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी महाराज ने की. ये बात हम हिंदी में भी समझ गए और ये बात हम अंग्रेजी में भी समझे. और अब इस बात को अंग्रेजी में हम कैसे समझाएं, कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, इस बात के लिए हम आगे मिलेंगे, फिर बात होगी. नमस्कार. जय श्री राम. तुम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. भगवान श्री राम का नाम पवित्र से पवित्र नाम है. सारे भव के रोगों की औषधि श्री राम नाम है. सारी समस्याओं का समाधान श्री राम नाम है. सारे धन की प्राप्ति श्री राम नाम है. जो कुछ है वो राम है. आदि है तो राम है, मध्य है तो राम है, अंत है तो राम है. राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रो, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोर रो. श्री राम नाम के आश्रय को छोड़कर अन्यत्र कहीं आश्रय लिया जाए तो निश्चित ही वो आश्रय वैसा है परोसी थाली को छोड़कर किसी क्रूर व्यक्ति से अन्न की याचना करना. और इसीलिए जहां वर्तमान समय पर पीढ़ी टिकी हुई है, मध्यकाल में क्या था, जब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तब क्या था, तब पीढ़ी संस्कृत के स्थान पर हिंदी पर टिकने लगी थी. अब हिंदी पर टिकने लगी, सारा साहित्य संस्कृत में विद्यमान था. पहली बार श्री रामचरितमानस के रूप में महाकाव्य बना रामायण की तरह. सर्वत्रिक चर्चा हो गई. अरे हिंदी में भगवान की वंदना. बाबा तुलसी ने कहा का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी काले करिय कुमाच. क्या हिंदी, क्या संस्कृत, प्रेम हृदय में सच्चा चाहिए. अगर सर्दी कंबल से रुकती है तो फिर चद्दर की आवश्यकता क्यों. आज कंबल ओढ़ोगे, धीरे धीरे चद्दर तक पहुंच जाओगे. ठीक वही गति वर्तमान पीढ़ी अंग्रेजी भाषा पर टिकी हुई है. पूरे विश्व में वर्तमान में वातावरण अंग्रेजी भाषा का है. आज अंग्रेजी से यात्रा प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चे हिंदी पर आएंगे. हिंदी पर आएंगे तो संस्कृत पे आएंगे, अनुष्टुप छंद जानेंगे और उसके बाद वेद पर आएंगे. एक क्रमिक रूप से जो वाल्मीकि की धारणा थी, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, क्योंकि वो जानते थे मकारो भक्तिवाचक है, तो उन्होंने भक्ति से मय से यात्रा प्रारंभ की और वैराग्य से होते हुए रकारो ज्ञानवाचक तक पहुंच गए. राम का नाम उन्होंने उल्टा जप दिया. ठीक उसी प्रकार एक महान यात्रा प्रारंभ की जा रही है. मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दान किया है, डॉक्टर अरविंद कुमार पुरोहित इतनी सरल आंग्ल भाषा बोलते हैं.
कि ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे बच्चे को, तोतले बच्चे को नई भाषा सिखा रही हो माँ। और उतनी ही शुद्ध संस्कृत, उतना ही वेदों का ज्ञान। उनके साथ बैठकर चर्चा हुई और आज वो चर्चा मूर्त रूप लेने जा रही है। वो चर्चा क्या है कि हम लर्निंग इंग्लिश थ्रू श्री रामचरितमानस करें। बच्चों को आंग्ल भाषा आनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय है। हमें एक नया सिद्धांत गढ़ना होगा जहां हम चर्चा करें वर्तमान की आवश्यकता के लिए। तात्कालिक ऑब्जेक्टिव जो होगा हमारा, वर्किंग ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा? एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट मैटर एट ऑल, बट बी भारतीय, एक्ट भारतीय। हमारा बाहरी परिवेश थोड़ा थोड़ा अलग हो तो भी चलेगा, लेकिन हम भारतीय की तरह व्यवहार करें। हमारे अंदर आत्म तत्व भारत का हो, राम हमारे हृदय में विराजमान हो। और इस भाव से इस यात्रा को आज प्रारंभ करते हैं कि जो हमें मानस के द्वारा रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमा शन भाखा। भगवान शंकर ने अपने हृदय स्थल पर इस रामचरितमानस को रचकर रख दिया। और जब मध्यकाल में भारत पर संकट आया तो पाई सुसमय उमा सन भाखा। समय पाकर माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी उसे लिपिबद्ध बाबा तुलसीदास जी ने किया। और लिपिबद्ध करने के लिए जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस श्री गणेशाय नमः से यात्रा प्रारंभ हुई। और इस यात्रा का प्रथम श्लोक ही वर्ण से प्रारंभ हुआ। वर्णानामर्थ संगानाम रसानां छन्दसामपि। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। पहला जो अक्षर बना वर्ण बना, वर्णानामर्थ संघानाम। हृदय पर जो स्फोट करते हैं वर्णों का समूह वाक्य, उससे श्री रामचरितमानस का बाबा ने, तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया। मानो वो कहना चाह रहे थे कि वर्ण संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये अक्षर ब्रह्म है। जैसे ही हम गाय बोलते हृदय में एक प्रतिरूप खड़ा हो जाता है। कान जैसे ही गाय शब्द सुनते हमें गैया मैया के मन स्थल पर दर्शन होने लग जाते हैं। और जैसे ही उन वर्णों का समुच्चय वाक्य बनता है तो स्वतः हमें परिभाषित होने लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सुनना है, क्या धारण करना है, क्या धारण करवाना है। अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरे कंठ शिरस्तथा जिव्या मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठो च तालु च। 8 स्थान है शरीर में। हमारे मुखमंडल में 8 स्थानों से हिंदी भाषा जो सर्वोत्तम है, ऐसे अज्ञानी से गे से ज्ञानी तक ले जाती है। उसके स्वरों का नाद उत्पन्न जो होता है, जो स्फोट उत्पन्न होता है, वो 8 जगह से होता है। उर से होता है, कंठ से होता है, सिर से होता है, जिह्वा के मूल भाग से होता है, दांतों से होता है, नासिका से होता है, ओष्ठ से होता है और तालु से होता है। ये जो स्फोट होता है सीधा कर्णरंध्र के अंदर जाता है और कर्णरंध्र में जाते ये स्फोट एक परिणाम देता है, स्वतः अंगीकार हो जाता है। इसलिए वर्णों का उच्चारण अपने आप में अद्वितीय ताकत है। एक बात और है, एक साथ सारे वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए निश्चित दिशा में सीधा प्रभाव जाता है। आप ओष्ठभ्य स्वर के साथ तालव्य बोलेंगे तो स्वतः मान के चलिए कि एकदम आपकी जीभ अलग अलग दिशा में जाएगी, होठ अलग अलग दिशा में जाएंगे, शरीर स्वतः अलग अलग क्रिया करता है। और इसलिए शास्त्रों में पतंजलि ये कहते हैं कि जिस समय हम वर्ण का ध्यान करते हैं तो सर्वभूत ऋत ज्ञानम,
वर्ण का जिस समय संयम करता है कोई व्यक्ति, तो उस समय पतंजलि अपने सूत्र में कहते हैं कि सुनो, वर्ण में संयम करने से सर्वभूतों का ज्ञान, ऋत ज्ञान प्रकट होता है, सत्य ज्ञान प्रकट होता है। यदि वर्ण में कोई ध्यान करे, शब्दार्थ में यदि कोई ध्यान करे, तो उसको ऋत ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है। तो ये योग का मार्ग है, हम शब्दों को जाने, अक्षर को जाने, वाक्य को जाने, छंद को जाने, काव्य को जाने, गद्य को जाने। और कहां से जाने? जहां टिके हुए। क्योंकि हमने ये सोचना होगा, टू टीच जोन लैटिन इट इज नॉट ओनली नेसेसरी टू नो लैटिन बट ऑल्सो टू नो जोन। जोन नाम के व्यक्ति को मुझे लैटिन भाषा सिखानी है, तो मुझे लैटिन ही नहीं आनी चाहिए, मुझे जोन के बारे में भी जानना चाहिए कि जोन क्या चाह रहा है। तो वर्तमान पीढ़ी सारी की सारी आलोचना से काम नहीं चलेगा कि सब ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा बन रहे हैं। कोई बात नहीं ना बाबा, 50 साल में बन गए ना, 100 साल में बन गए ना, अब हमें उनको वहीं से यात्रा प्रारंभ करानी है। और यात्रा प्रारंभ करा के जो वो निरर्थक कहानियां पढ़ रहे हैं, उसके स्थान पे उनको सार्थकता की तरफ लेके जाना है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है? मंगलानाम च कर्तारो। वर्ण का सिद्धांत क्या है? वर्णानामर्थ संघानाम स्फोट करेगा। और स्फोट कैसा करेगा? रसानाम रसयुक्त स्फोट करेगा। रसो वेश है, रस नारायण का गुण है, जहां राम है उनका गुण है रस। तो रस को प्रकट करता हुआ वाक्य होना चाहिए, ऐसा वाक्य जो हृदय को द्रवित कर दे, हृदय को आप्लावित कर दे, हृदय में नदी बहा दे, हृदय को दौड़ा दे भगवान की तरफ। ऐसा सुंदर वाक्य कहां होगा? जहां राम होंगे। और फिर वो जो वाक्य है ना, वर्ण से बना हुआ, वो अनायास नहीं होना चाहिए। रसानाम छंद सामपि, छंदबद्ध होना चाहिए, संगीत बनना चाहिए, हृदय में आनंद आना चाहिए। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। वर्ण से यात्रा प्रारंभ हुई, कहां तक चली गई? तो इसलिए वर्ण मूल तत्व है जिसमें संयम करने से सर्वभूतों का ज्ञान होता है। और मंगल होना चाहिए, अमंगल नहीं होना चाहिए। और मंगल क्या है? भगवान राम का पावन नाम ही मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। इसलिए उस मंगल नाम के माध्यम से हम इस आंग्ल भाषा की जानकारी प्राप्त करें, फिर आंग्ल भाषा की जानकारी के साथ मानस की चौपाइयों में रमण करें। और मानस की चौपाइयों में रमण करते हुए सबके हृदय में रमण करने वाले राजा रामचंद्र की हम धारणा करें। यही इस उपाख्यान का जो लगातार चलेगा मूल सूत्र है। और इस मूल सूत्र में प्रारंभ में, इस प्रारंभिक श्लोक में बाबा तुलसीदास जी ने एक बात दी कि वर्ण से यात्रा प्रारंभ होती है मानस की, क्योंकि स्फोट वर्ण करेगा। और समापन कहां किया उन्होंने? क्रम भंग किया उन्होंने। वंदे वाणी विनायको, पहले मैं शारदा की वंदना करता हूं, फिर गणपति की वंदना करता हूं। ये क्रम भंग क्यों किया उन्होंने? ये क्रम भंग इसलिए किया कि जब तक शारदा अभ्यास में नहीं आएगी, हृदय में नहीं आएगी, तब तक गणपति की वंदना कैसे होगी? जब तक शारदा की धारणा नहीं होगी, कोई व्यक्ति कैसे गाएगा? सुमुखश्चेक दंतश्चेक कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक है। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि ये पठे शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। और जब तक शारदा नहीं आएगी, ये गाएगा नहीं, तब तक उसके विघ्न समाप्त नहीं होंगे। इसलिए प्रारंभ में उन्होंने उल्टा जप प्रारंभ किया, पहले शारदा जपी फिर गणपति जपे। इसलिए जो संस्कार जनित सनातन संस्कृति के लोग हैं, उन्हें भी इसमें त्रुटि नहीं लगेगी, गर्व होगा कि पहले अंग्रेजी भाषा जपेंगे, फिर हिंदी पे जाएंगे और फिर उस देववाणी संस्कृत पे इस यात्रा को ले जाएंगे। इसलिए इस यात्रा के पथ पर आप सब हमारे साथ बने और जाने प्रतिदिन हिंदी में, अंग्रेजी में कि ये मानस क्या कहती है। हिंदी में मैं सुनाता रहूंगा, इसको तुरंत आंग्ल भाषा में यही पद कैसे कहा गया, इससे अंग्रेजी कैसे सीखे। सामने जो मेरे योग्य गुरु बैठे हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार पुरोहित, एक मनमोजी, हृदय में राजा रामचंद्र को स्थान दिए हुए, अपने ही निज आनंद में रमण करने वाले,
कृषि विज्ञान के बहुत अच्छे अध्येता, साथ में पंचगव्य प्रौद्योगिकी पर बहुत काम कर चुके और अपने मजे में जीने वाले स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं निवेदन करूंगा सर कि अब आप इस यात्रा में हमें आगे इसी श्लोक को किस प्रकार याद करते हुए व्यक्ति आंग्ल भाषा की वोकैबुलरी समझ सकता है, आंग्ल भाषा में चर्चा कर सकता है, आंग्ल भाषा में संवाद हमारी पीढ़ी कर सकती है, ताकि हमारी पीढ़ी शेक्सपियर को पढ़ने के साथ साथ राजा रामचंद्र को पढ़े, हनुमान जी महाराज को पढ़े, जगत जननी जानकी को पढ़े और आनंद ले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आदरणीय पुरोहित सर, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए।